guys, it's Shreya here and welcome back to my channel Beauty and the Code। आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी रोज़ परफ्यूम्स के बारे में अदर दैन द फ्रेश कैटेगरी। सो रोज़ एक बहुत ही वर्सटाइल नोट है परफ्यूम्स में एंड बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में रोज़ परफ्यूम्स अवेलेबल होते हैं। कभी स्पाइसी रोज़ का कॉम्बिनेशन रहता है, कभी वुडी रोज़ का कॉम्बिनेशन होता है, हर्बल रोज़ हो गया, स्वीट रोज़ हो गया या ऊद या इंसेंस बेस्ड रोज़ कॉम्बिनेशन हो गए। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं मार्केट में और मेरे पास हर कैटेगरी के कुछ परफ्यूम्स हैं। तो मैंने सोचा कि एक कंबाइंड रोज़ परफ्यूम्स के रिकमेंडेशंस का वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसमें मैंने रोज़ के कैटेगरी वाइज मैं आपके साथ परफ्यूम्स शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर वी बिगिन, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इसके पहले का वीडियो मैंने फ्रेश रोजेस के ऊपर किया है, तो आज के वीडियो में मैं फ्रेश कैटेगरी वाले रोजेस छोड़कर बाकी सारे कैटेगरीज के रोजेस परफ्यूम्स आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो बिफोर आई स्टार्ट शेयरिंग ऑल द परफ्यूम्स विथ यू, इफ़ बाय एनी चांस आई लुक टायर्ड or sick or not so happy today, that's because I'm going through some issues which are very difficult for me to process, and things happen in personal life. I never talk about those things on my channel, but thoda sa mera state of mind is not that positive today, and I don't know, it's just overall affecting the way I am behaving, the way I am trying to process information that I have got to know. So bear with me if I am a little dull in this video. I hope that won't affect the information that is coming to you, but just be kind in the comments, and I just hope that you understand my situation today. Anyways, let's begin with the video. So let's talk about the first category. First category is a sweet rose category. Sweet rose category में बहुत बार rose and vanilla is a very dominant combination, and that's exactly what I'll be talking about today. So the first thing that I have is Rose Gourmand from Zara. Now Rose Gourmand from Zara is a very simple fragrance, yet it is very powerful and beautiful. इसमें amber, vanilla, rose ये तीन notes ही सबसे ज़्यादा prominent और निखर के आते हैं। बहुत वार्मथ है इसमें एम्बर का, वेनिला इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्वीट है, एंड ओवरऑल इट लिटरली फील्स फ्रेश आउट ऑफ बेकरी काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। इसीलिए इसको गुरमांड कैटेगरी में रखा गया है। सो द नेम इज जस्ट एप्ट। रोज गुरमांड इज द परफेक्ट नेम फॉर दिस परफ्यूम। This is also said to be a dupe of a very high-end perfume, and ये dupe है Mancera का Roses Vanille का, and मैंने notes compare किए हैं, काफ़ी similarities हैं, and this fragrance is bomb in performance. ये बहुत long lasting है, ये थोड़ी playful fragrance है। It's the kind of fragrance which is super romantic। तो जितने भी sweet rose category वाले perfumes रहते हैं वो usually बड़े romantic perfumes रहते हैं। This is no exception. This is like a very beautiful and a romantic perfume. And if you are a guy who wants to gift roses to your girlfriend, wife or whatever, and you don't want to literally gift her roses but be a little innovative, I think you can gift her this perfume, because this one is a very sweet rose perfume and you definitely want to try this. ये काफ़ी strong है, by the way। Zara के perfumes उतने strong नहीं होते, but this one is very strong, so keep that in mind if you are purchasing this। ये काफ़ी strong है, काफ़ी potent है, कभी कभी headache भी देता है। Okay, I totally forgot Niche का rose caramel in the sweet category. This is like my current favorite, and I don't know how I forgot to mention it in the video, so definitely want to insert this clip in between, disturbing the whole video, but I have to, because rose caramel needs to be present in the sweet rose category. It is one of my favorite perfumes and it is so sweet, so yummy, so gorgeous, so projective. You definitely need to try Niche का rose caramel if you are into sweet rose categories. तो रोज़ स्वीट रोज़ के परफ्यूम्स टिपिकली मेरे पास बहुत नहीं है कलेक्शन में। रोज़ गुरमांड इज़ जस्ट वन ऑफ देम। मेरे पास कुछ और स्वीट रोजेस हैं बट उसमें दूसरे नोट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं वो नेक्स्ट कैटेगरी में आपके साथ कवर करूँगी। सो द नेक्स्ट कैटेगरी दैट विल बी टॉकिंग अबाउट इज़ मोर ऑफ लाइक
वेनिला, रोजेस मिक्स्ड विथ सम अदर नोट से पचूली। तो अब हम बात करेंगे रोज पचूली कॉम्बिनेशन मेजॉरिटी। तो सबसे पहले रोज पचूली फ्रेग्रेंस में आता है नीश का लक्स हयात। नीश लक्स हयात में वेनिला प्रेजेंस है लेकिन बहुत कम है, ये उतना स्वीट नहीं लगता। ये परफेक्ट यूनिसेक्स परफ्यूम है, थोड़ा सा मैस्कुलाइन साइड पे लीन करता है, मुझे ऐसा लगता है। इसमें रोजेस है, वाइट चॉकलेट है, डार्क रोज है, एकदम डार्क रोज, गॉथिक रोज जिसको बोलते हैं ना, गॉथिक रोज है। इसके बेस नोट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग पचूली का प्रेजेंस है, जिसकी वजह से वो एक हर्बल वुडीनेस एंड इट ऑल्सो ब्रिंग्स अ लिटिल बिट ऑफ अ मॉसी और ग्रीन टच इन दिस। एंड इसमें पचूली का प्रेजेंस काफ़ी रॉ जैसा फील होता है, मतलब इट्स अ वेरी रॉ पचूली, मुझे ऐसा लगता है। एंड ये परफ्यूम का बहुत मतलब इट्स वेरी यूनिक इन अ वे कि इट इज़ अ गॉथिक रोज मिक्सड विथ वाइट चॉकलेट, वेनिला, पचूली, बट स्टिल इट इज़ नॉट स्वीट, सो इट्स दैट काइंड ऑफ अ परफ्यूम। तो रोज पचूली का ये एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। सेकेंड वन इज़ विसल दहाब फ्रॉम अजमल। नाउ इसमें एक मिडल ईस्टर्न वाइब है, इवन जब इसमें ऊद नहीं है तो भी इसमें एक मिडल ईस्टर्न वाइब है। इसमें वुडसी नोट्स, एम्बर नोट, पचूली, फ्रूटी रोजी कैटेगरी, वो सब कुछ प्रेजेंट है इसमें। ओपनिंग इसकी काफ़ी फ्रूटी है, सब कुछ एप्पल, पीच, ग्रीन एप्पल, many fresh fruits are present in the top notes in this, and then again it's a patchouli dominating rose fragrance। तो सबसे मेजॉरिटी नोट इसमें रोज का ही आता है एंड इसमें बहुत सारी वुडी नोट्स मिक्स्ड हैं पचूली के साथ। तो ये भी एक रोजी पचूली फ्रेग्रेंस कैटेगरी का परफ्यूम है, बट इसमें फ्रूटीनेस होने की वजह से एक काफ़ी फ्रेशनेस, एक काफ़ी यूथफुलनेस और एक काफ़ी लाइवलीनेस आता है। मतलब दिस इज़ नॉट अ वेरी डल फ्रेग्रेंस, यू नो, ये थोड़ा सा लाइवली रोज फ्रेग्रेंस है, फ्रूट्स एंड अगेन पचूली के साथ। सो दिस कैन बी कैटेगराइज एज अ रोज पचूली फ्रेग्रेंस। थर्ड फ्रेग्रेंस रोज पचूली फ्रेग्रेंस कैटेगरी में इज़ अजमल सेनोरा। अजमल सेनोरा को समहाउ इंटरनेट पे थोड़ा हेट मिला है, कुछ यूट्यूबर्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ को बहुत पसंद है। मेरा थोड़ा सा न्यूट्रल ओपिनियन है इस परफ्यूम के बारे में। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। इसके ओपनिंग में लैबडामन है, वॉयलेट लीफ है, पेपर है जिसकी वजह से काफ़ी स्पाइसीनेस आता है, बट इसका जो मिड नोट है उसमें रोज़ और पचूली बहुत डोमिनेटिंग है ऑरेंज ब्लॉसम के साथ। इसमें बेस नोट्स में वेनिला, एम्बर, बेंजोइन, बहुत सारे स्वीट नोट्स प्रेजेंट है, लेकिन ओवरऑल ये बहुत स्वीट परफ्यूम नहीं लगता क्योंकि रोज़ और पचूली बहुत स्ट्रॉन्ग है इसमें एंड इसमें स्पाइसीनेस आती है। सो क्या इसमें पान मसाले का फील आता है? नॉट रियली, क्योंकि मुझे इसमें वो हर्बल या विटिवरनेस नहीं है, तो उसकी वजह से मुझे ये नहीं लगता कि पान मसाले जैसा है। बट हाँ, थोड़ा सा तीखे रोज़ की तरह ज़रूर लगता है ये। एंड इसमें अगेन जो हर्बलनेस है, जो वुडीनेस है, वो सब पचूली की वजह से आ रहा है। एक बिटरनेस भी आती है इसमें, वो भी पचूली से ही आ रहा है। सो दिस इज़ अगेन अ रोज पचूली डोमिनेटिंग कॉम्बिनेशन। दिस हैज़ एवरेज परफॉर्मेंस, एवरेज सियाज, एवरेज projection and all. Overall it is kind of like a decent perfume, but rose patchouli category में better options मैं already आपको दिखा चुकी हूँ, so this is my third pick. Next category is rose incense. Rose incense में मैं desert rose का नाम ज़रूर लेना चाहूँगी, again by अजमल. You can see the trend here. मेरे पास एक तो अजमल fragrances बहुत सारे हैं collection में. I should do actually a अजमल collection video also is what I'm thinking. तो अजमल के बहुत परफ्यूम्स हैं मेरे पास, इसलिए मैं आपको ये वाला रेकमेंड कर रही हूँ। तो इंसेंसी रोज़ में ऐसा रोज़ जिसमें अगरबत्ती का फील बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उसको हम इंसेंसी फ्रेग्रेंस बोलते हैं। ये एक रोज़ बहुत ही ड्राई वुडी इंसेंसी फ्रेग्रेंस है। अगर आपको एक्सपीरियंस है कि रोज़ पॉटपोरी कैसी स्मेल करती है, तो आप एग्जैक्टली इमेजिन कर पाओगे कि ये कैसे स्मेल करती है। ये लिटरली एक रोज़ के धूप या अगरबत्ती की तरह स्मेल करता है, या फिर रोज़ पॉटपोरी की तरह बहुत ड्राई। तो अगरबत्ती के जलने के बाद जो थोड़ा सा राख का ड्राइनेस रहता है, वुडीनेस रहता है, रोजी इंसेंसीनेस रहता है, ये एग्जैक्टली वैसे स्मेल करता है। सेकेंड इज मोर लाइक स्पाइसी इंसेंसी फ्रेग्रेंस इन रोज कैटेगरी, एंड दिस वन इज फ्रॉम फॉग। ये फॉग का ब्यूटिफुल सीक्रेट
सेंट है रेड कलर का, ये काफ़ी हद तक पान मसाले के जैसा स्मेल करता है। ये बिल्कुल पान मसाले के जैसा स्मेल करता है। इसमें स्वीटनेस है, इसमें रोज़ बहुत प्रोमिनेंट है, गुलकंद जैसा लगता है। ये स्वीटनेस है, वुडीनेस है, थोड़ा सा हर्बलनेस है, वो बीटल लीफ का इफ़ेक्ट है, मिंट, कहीं ना कहीं थोड़ा मिंटीनेस है इस फ्रेग्रेंस में। एंड टिपिकली जैसे पान मसाला या गुलकंदी फ्रेग्रेंस जैसी होती है, थोड़ी सी स्पाइसी, थोड़ी सी इंसेंसी, थोड़ी सी वुडी, ये उस कैटेगरी का परफ्यूम है। तो अगेन इट्स पार्ट ऑफ रोजी इंसेंसी कैटेगरी ओनली, बट विथ लिटिल बिट ऑफ अ ट्विस्ट ऑफ स्पाइसेस। अब बात करते हैं हर्बल या बिटर रोजेस की। मेरे पास उसमें एक ही परफ्यूम है एंड दिस वन इज़ फ्रॉम डेलेक्सर्स। नाउ डेलेक्सर्स का रोज़ ऑ दे पैफाम है, ये देखने में इतना लैविश और इतना सुंदर लगता है, बट दिस इज़ लाइक वन ऑफ द फ्रेग्रेंसेज विच जस्ट डज नॉट सिट राइट विथ माई बॉडी केमिस्ट्री। ये मेरे ऊपर इतना कड़वा, इतना बिटर स्मेल करता है। एंड दिस इज़ वेरी सिमिलर टू अ कॉन्सेंट्रेटेड गुलाबरी बट विथ अ लॉट ऑफ बिटरनेस इन इट। बहुत ज़्यादा हर्बल, बहुत ज़्यादा हर्बल, बहुत ज़्यादा कड़वा और बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड गुलाबरी का डार्क रोज़ फील है इसमें। ये वाला पर्सनली मुझे उतना पसंद नहीं है, बट कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट cannot deny the fact that this category is also a very loved category for some of the rose lovers. That's why I'm mentioning this. It is a very harsh and a very strong smell is what I feel. ये एकदम नाक और सर में चढ़ने वाली फ्रेग्रेंस है, बट इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, थोड़ी देर बाद ही गायब हो जाती है। मुझे ओवरऑल ये कैटेगरी ही पसंद नहीं है। हर्बल रोजी बिटर कैटेगरी, आई don't like it, but since I have it, I'm going to mention it because some people may like it. My last category is rose oud category या rose agarwood category. उसमें सबसे पहला पिक मेरा ये वाला है. This one is a Swiss Arabian Shagaf Oud. This is a beautiful fragrance. I absolutely love this one. This is a beast mode perfume. बहुत प्यारा प्रोजेक्शन है इसका। इसका भी फील एक मीठी सुपारी रोज़ की तरह है, काफ़ी प्रोमिनेंट वुडीनेस है, काफ़ी स्वीटनेस है, थोड़ा सा ऐसे सैंडलवुडी का क्रीमीनेस है इसमें, बहुत प्रोजेक्टिव है, ऊद भर भर के है इसमें। ये एक बहुत ही यूनिक ब्लेंड है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत प्रोजेक्टिव है, बीस्ट मोड है, लॉन्ग लास्टिंग है। इट्स noticeable, it's a compliment getter kind of a fragrance, but it is not for the faint hearts. You need to love strong fragrances to love this one. अगर आपको strong fragrances पसंद नहीं है, इसका एक या दो स्प्रे भी आपको बहुत headache inducing लगेगा। थोड़ा एक्सपेंसिव भी है ये फ्रेग्रेंस, बट आई फाइंड इट वर्थ इट बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव दिस वन। तो ये वाला है, और हाँ, इसमें काफ़ी टिपिकल मिडिल ईस्टर्न वाइब आता है ऊद की वजह से, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऊद है इसमें। Now the next one that I have and the last perfume for today's video is from Latafa, and ये Latafa का बादी अल ऊद fragrance है amethyst variant में। Now this is a dupe for Initio's Atomic Rose, and this particular perfume, it has my heart again. Now this one is also an oud dominating rose perfume, but it has a gorgeous opening of saffron. Like, saffron is so freaking strong in this perfume. You cannot miss the presence of saffron in this. इतना मीठा saffron है इसमें. It literally feels like कि आपने एक बहुत अच्छी सी खीर बनाई है जिसमें आपने saffron डाला हुआ है ढेर सारा, and आपने रोज पेटल्स से उसको गार्निश किया है, तो बिल्कुल वैसा वाला फील है इसका। इट्स अ वेरी स्वीट सैफ्रनी बेस्ड रोज परफ्यूम। थोड़ी सी ओपनिंग इसकी प्लास्टिक की लगती है फॉर सम रीज़न, बिकॉज लताफ़ा इज़ अ ड्यूप हाउस, एंड उनके फ्रेग्रेंसेस बहुत परफेक्ट तो नहीं रहते, थोड़े ट्विस्ट रहता है, बट दे क्रिएट ग्रेट ड्यूप्स। दिस वन इज़ प्रोजेक्टिव, दिस वन इज़ लॉन्ग लास्टिंग, इट इज़ स्वीट, इट इज़ डिफरेंट, एंड इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट गेटर अगेन। सो अगेन दिस वन इज़ वन ऑफ माई top picks. If I have to pick any rose based fragrance, this is one of my top picks. तो आपको मेरे रिएक्शन से पता चल ही गया होगा। For me, my favorite category is rose oud
category. I enjoy rose oud fragrances. I love that it is challenging, it is strong, it is dominating, it is compliment getter, and it's everything that I need in a perfume. So मेरे लिए rose oud is the favorite category. My next is definitely sweet rose, and then rose patchouli. Herbal roses is not for me. Even spicy roses is not something that I enjoy so much. But हाँ, rose oud fragrances is something that I enjoy a lot. And fresh roses का perfume का video मैं already बना चुकी हूँ. उसमें मैंने बहुत सारे options आपके साथ share किए. तो overall हम कह सकते हैं comfortably कि I like rose in my perfumes. I have a lot of rosy based perfumes, as you can see. So I think मैंने काफ़ी majority rosy perfumes इसमें cover कर लिए ये दो videos में. तो I think I will move on to the next note which I have in my collection, and probably it is going to be white florals. तो मैं धीरे धीरे white florals category में shift होना start करूँगी. Probably I'll start with jasmine because मेरे पास jasmine based बहुत सारे perfumes हैं. So I think jasmine के ही part 1 part 2 हो जाएंगे. I may have many jasmine fragrances to show you guys. तो उसमें मैं काम करूँगी ड्रग स्टोर एंड हाई एंड ऐसे अलग करने को ट्राई करूँगी. लेट्स सी, आई हैव टू विजिट माई कलेक्शन टू पिक आउट फ्रेग्रेंसेस फ्रॉम देयर, बट आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन वाइट फ्लोरल्स इन माई नेक्स्ट वीडियो. सो यार, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप कि आपको ये रोज़ विद डिफरेंट नोट्स का कैटेगरी का परफ्यूम वीडियो अच्छा लगा. एंड इफ़ यू डिड, देन हिट द लाइक बटन. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू pick and choose fragrances and categorize them and then present it to you. And there's a lot of knowledge involved, lot of notes, lot of things, lot of readings. So I hope कि आप support करोगे. Hit the like button. Also comment which is your favorite rose other note category, and do tell me your favorites in the comment section. Let's make that area chatty and knowledgeable for everyone who visits there. Please subscribe, please hit the bell notification, and follow me on Instagram. And I will see you in my next video with a better mood, with a better mental state, and I'll try to deliver better than what I did today. So yeah, thank you for being patient, and that's it for today's video. Bye.